اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اس امن کے پرچم کو ہر گھر میں لگا دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج یہ پیغام قرآن کریم کا میں تم سب کے نام کر رہا ہوں، خاص کر کے میرے نان مسلم بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اسلام آتنک باز ٹیررسٹ سکھاتا ہے۔ یہ قرآن جو ایسے کام کرتے ہیں وہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جو اونچے پیجامہ اور لمبے کرتے والے بم باندھ کر پھٹکتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کے آدیش قرآن سیدھے سیدھے مانوتا کے لیے سنیں، بد زبانی سے بچیں، غصے کو پی جاؤ، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، گھمنڈ سے بچو، دوسروں کی غلطیاں معاف کرو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو، اپنی آواز نیچی رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کی بے ادبی سے بچو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو، عزت کے بنا کسی کے اجازت کے بنا کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو، آپس میں قرض کے معاملات لکھ لیا کریں، کسی کی اندھی تقلید نہ کرو، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اس کا قرض اتارنے میں مدد کرو، بیاج مت کھاؤ، رشوت مت کھاؤ، وعدوں کو پورا کرو، آپس میں بھروسہ قائم رکھو، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، لوگوں کے بیچ انصاف فیصلہ کرو، انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ، مرنے کے بعد ہر شخص کی دولت اس کے قریب رشتہ داروں میں بانٹ دو، عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے، یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کسی کے جھگڑے کے معاملے لوگوں کے بیچ صلح کراؤ، بد گمانی گستاخی سے بچو، گواہی کو مت چھپاؤ، ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو اور کسی کی چغلی مت کرو، اپنے مال میں سے خیرات کرو، غریبوں میں مسکین غریبوں کو کھلانے کی ترغیب دو، ضرورت مند کو تلاش کر کے ان کی مدد کرو، کنجوسی اور بے فضول خرچی سے بچا کرو، اپنی خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے احسان جتا کر برباد مت کرو، مہمان کی عزت کرو، بھلائی پر خود عمل کرنے کا بعد دوسروں کو بڑھاوا دو، زمین پر فساد مت کرو، لوگوں کے مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے مت روکو، لوگوں کو اللہ کے ذکر میں مسجد سے نہ روکو، صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑیں۔ سورہ 2 آیت نمبر 190۔ جنگ کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سورہ 2 آیت نمبر 191۔ جنگ کے دوران پیٹھ مت پھیرنا، دین میں کوئی زبردستی نہیں، سبھی پیغمبروں پر ایمان لاؤ، حالت ماہواری میں عورت کے ساتھ سنبھوگ نہ کریں، ماں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، خبردار زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، زنا کے کسی بھی صورت میں پاس نہ جانا۔ سیکس، حکمرانوں کو خوبی دے کر سنا کرو، خوب دیکھ کر چنا کرو، حکمرانوں کو خوب دیکھ کر چنا کرو، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، مزدوروں کو
आपस में दुनिया की बनावट और चमत्कार पर गहरी चिंता किया करो, यानी अल्लाह ने किस तरह दुनिया की तख्लीक फरमाई है उस पर खूब गौर किया करो। मर्दों और औरतों को अमाल का सिला बराबर मिलेगा। खून के रिश्तों में शादियां मत करो, मर्द परिवार का हुक्मरान है। हसद और कंजूसी मत करो, यानी किसी के दिल में बुग़्ज़ ना रखो, किसी के लिए बुराई मत रखो। हसद मत करो, किसी के लिए नफरत दिल में ना रखो, उसके लिए। एक दूसरे का कत्ल मत करो, एक दूसरे का कत्ल मत करो। आयत नंबर सूरह नंबर 4 आयत नंबर 92। खयानत करने वालों को हिमायती मत बनाओ, जो जैसे किसी का माल खा जाते हो ऐसे लोगों को हिमायती मत बनाओ। आयत नंबर 4 सूरह नंबर 4 आयत नंबर 105। सबके एडिशन दिए हुए हैं, जिसे चेक करना वो चेक कर सकता है। गुनाह और जुल्म व ज्यादती में मदद मत करो, यानी कोई जुल्म करता हो उसकी मदद मत करो, और ज्यादती करता हो उसकी भी कोई मदद ना करे। सूरह 5 आयत नंबर 2। नेकी और भलाई में सहयोग करो। अक्सरियत में होना सच्चाई का सबूत नहीं, अक्सरियत में होना सच्चाई का सबूत नहीं। सूरह 6 आयत नंबर 116। इंसाफ पर कायम रहो। सूरह 5 आयत नंबर 8। जुर्म की सजा मिसाली तौर पर दो, मिसाली तौर में दो। कोई अगर जिना करता है उसे चौराहे पर हजारों आदमियों को बुलाकर सजा दो। कोई अगर चोरी करता है तो उसके हजारों आदमियों को लोगों के सामने दो, ताकि 4 आदमी उससे भी कान हो जाए उन लोगों के, कि आगे से कोई ऐसी खता न करे। इसलिए मिसाल तौर पर इस तरीके से उर्दू में बोलते हैं इबरतनाक उसे सजा दी जाए। गुनाह और बुराई अमालियों में खिलाफ भरपूर जिहाद करो, यानी गुनाह से लड़ो और बुराइयों से लड़ो, खूब खिलाफ इनकी जिहाद करो। जो बुराई है उनके खिलाफ खूब जिहाद करो, इसी को जिहाद कहा जाता है हमारे यहाँ। मुर्दा जानवर, खून, खंजीर का मांस निषेध है, मतलब हानिकारक है। शराब और नशीली दवाओं से खबरदार। जितना भी नशा है सब से रोका गया है, ये सब हराम है, कोई भी नशा हो। जुआ मत खेलो, इस पर अपने घर वालों को दाव पेश पर न लगा। जुआ में पल भर में आदमी से क्या होता है, इससे अल्लाह भी नाराज होता है, ईश्वर भी नाराज होता है। दूसरों की आस्था का मजाक ना उड़ाओ, जैसे कि किसी का मंदिर हो, किसी का टेंपल हो, किसी का गुरुद्वारा हो, इनकी आस्थाओं की मजाक ना उड़ाओ, इसे अल्लाह ताला सख्त मना फरमाता है। जो ऐसी जगह मजाक उड़ाते हैं या फिर ऐसी जगहों को बम से उड़ाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत निराश होता है, नाराज होता है। तो ये लोग इस्लाम में भी नहीं, जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो, किसी की दिल आज़ारी भी करते हो, यानी दिल भी दुखाते हो, ऐसे लोगों के लिए जन्नत है ही नहीं। किसी का दिल दुखाने वाला हमेशा जन्नत में नहीं जाएगा। लोगों को धोखा देने के लिए नाप तोल में कमी मत करो। कोई अगर वजन बेचते हो या कुछ बेचते हो तो तराजू आमने सामने हो, उसकी तफसील में हो, बिल्कुल सामने वाला देखे। कितना ख्याल रखा गया इंसानियत का। के आयत नंबर 152 सूरह 6। तो कितना इंसानियत का ख्याल है कि अगर इतनी सहूलियत है किसी में, जो कुरान पर इल्ज़ाम लगते हैं, ये जो पढ़ते ही नहीं गधे घामड़, तो वो तो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। खूब खाओ पियो, लेकिन हद पार ना करो, यानी इतना खाओ जहाँ तक कि हद हो जाए, उसके बाद में यानी हद पार ना कर दो, ज़्यादती ना हो जाए। खाना भी एक गुनाह है, ज़्यादा खाना, हद से हद पार कर देना। मस्जिदों में इबादत के वक्त अच्छे कपड़े पहने, खूबसूरत कपड़े पहने, अच्छे होकर जाएं।
साफ सुथरे होकर जाए नमाज पढ़ने के वक्त। जो तुमसे मदद और हिफाजत और पनाह में तलबगार हो उसकी मदद करो, हिफाजत करो। यानी कोई मुशरिक, कोई भी जिसे तुम लोग बुरा नाम देते हो, मुशरिक हम बोलते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने वाला, तो ऐसे लोग भी कोई भी हो, अगर तुमसे मदद मांगते हो, नॉन मुस्लिम कोई मदद मांगे तो उसे पनाह भी दो और उसकी हिफाजत करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पाक साफ रहो, यानी पाक और साफ यानी पवित्र और साफ सुथरे रहो। अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत होना, यानी अल्लाह के दया से कभी निराश मत होना, और उर्दू में अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अज्ञानता और जहालत के कारण किए गए बुरे काम और गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। यानी जो कभी पता ना हो किसी को और कोई जहालत में कर दे और उससे माफ़ी मांग ले तो ईश्वर उसे माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। लोगों को अल्लाह की तरफ हिकमत और नसीहत के साथ बुलाओ, और कोई किसी के गुनाहों का बोझ ना उठाएगा। सूरे 17 आयत नंबर 15। कोई भी किसी के पाप दंड में कोई भागीदारी नहीं होगा, पाप का कोई भागीदार नहीं होगा जब दंड मिलेगा उसका। कोई गुनाह करेगा तो उसका अगर सजा मिलेगी तो उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। मिस्कीनी और गरीबी के डर से बच्चों की हत्या मत करो। आजकल बहुत सारी फैमिली प्लानिंग हो रही है, न जाने कितने बच्चों को गिराया जा रहा है। यानी गरीबी के डर से बच्चों को ना मारे, बहुत जगह ऐसा है। जिस बात का इल्म ना हो उसके पीछे एग्री मत पढ़ो, उसके पीछे ना पढ़ो। जिस बात के बारे में तुम जानते ही ना हो उसके पीछे ही ना पढ़ो। सूरह 17 आयत नंबर 36। और ये हो सकता है इस वीडियो से और सेकुलर आदमी, समझदार आदमी अगर समझ में आ जाए तो कल इस्लाम से मोहब्बत ही करे, किसी अच्छे से मिले अगर उसे जानना है इस्लाम क्या है। ऐसे उसे न मिले जो ऊंचे पजामे वाले होते हैं। निर्धार और अनजाने कामों से परहेज करो। जिस काम में वो जानते ही न हो ऐसे कामों से परहेज करें। दूसरों के घरों में बिला इजाजत दाखिल न हो। आयत नंबर 27 सूरे 24। किसी के घर दाखिल हो तो इजाजत लेकर ही दाखिल हो। जो अल्लाह में यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। सूरह 24 आयत नंबर 55। जमीन पर आराम और सुकून से चलो, यानी इस धरती पर बहुत प्रेम और बहुत ज़्यादा सुकून से चलो। अपनी दुनिया जिंदगी को अनदेखा मत करो, अपनी दुनियावी जिंदगी को अनदेखा मत करो। अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, अल्लाह के साथ किसी और की पूजा ना करो। जैसे एक पूजा के लायक, भक्ति के लायक एक ईश्वर है जिसने हमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी को बनाया, एक ही ईश्वर ने बनाया, एक ही अल्लाह ने बनाया है। पर उसी के सामने तुम उसे बुतों को पूछते हो, अपने आप बना के उसे पूछते हो। ये उसके लिए कि जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा खुदा है। और जिसे तुमने बनाया वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। और समय लिखता से बचा करो। अच्छे कामों की नसीहत और बुरे कामों से रोका करो।
सूरह 31 आयत नंबर 17। जमीन पर शेखी और हंकार यानी घमंड से इतरा कर मत चलो। अल्लाह इतरा के चलने वालों को पसंद बिल्कुल नहीं फरमाता। जो घमंड करता हो ज़मीन पर चलने पर, मेरा जिस्म ऐसा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी, मेरी दौलत ऐसी, मेरी ज़मीन ऐसी, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी, यानी ज़मीन तकाब्बुर करने वालों को, घमंड करने वालों को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करवाता। ईश्वर करता ही नहीं है। औरतें अपने बनाव सिंगार तकाब्बुर से ना करें। जो औरत खूबसूरत है, जो अपनी जीनत अगर दिखाना चाहे तो अपने शौहर को दिखाए, गैरों के सामने ना आए। और औरत अगर बनाव सिंगार करे तो उसमें उसका घमंड न हो कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। उसे रब ने बनाया खूबसूरत, और खूबसूरती पे वो इतना जहालत न दिखाए। इस जहन्नुम में जाने के रास्ते हैं। अल्लाह सभी गुनाहों को माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। यानी शिर्क का मतलब होता है यानी अल्लाह के सिवा अल्लाह ने तुम्हें बनाया, तुम किसी और को पूछते हो उसी के सामने, मूर्तियों को वगैरह वगैरह को, इसीलिए सब कुछ माफ़ कर देगा। लेकिन ईश्वर इन मूर्ति पूजने वालों को माफ़ नहीं करेगा जो किसी और को पूछते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अगर तुमने ऐसा कर लिया हो तो माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देगा। वो जहालत में और धोखे में हुआ है, वो सब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। बुराई को भलाई से दफ़ा करो। बुराई अगर हो गई हो, वहाँ पे अगर लड़ाइयाँ होती हों तो उधर भलाई करो, वहाँ पे दफ़ा हो जाएगी। माफ़ी मांग लो, उधर सब अच्छा ही अच्छा होगा। नमाज से अपने काम अंजाम दो। कोई भी अगर काम करो तो ईश्वर की भक्ति करो, तब अपने कामों को अंजाम दो। और तुम सबसे इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई को इख्तियार किया, यानी जिसने सच्चाई और भलाई को पसंद किया। दीन में रहबानियत मौजूद नहीं, दीन में हैवानियत मौजूद नहीं। अल्लाह के यहाँ इल्म वालों के दर्जात बुलंद हैं। जो इल्म रखते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन लोगों के दर्जे बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। गैर मुसलमानों के साथ उचित व्यवहार और दयालुता और अच्छा व्यापार करो। यानी नॉन मुस्लिम के साथ, गैर मुसलमानों के साथ अच्छा और उचित व्यवहार करो, और दयालुता और अच्छा व्यवहार करो। दयालुता करो, बहुत रहम दिल से उनके साथ व्यापार करो। तो अपने आप को नफ्स की हर्ष पाक रखो, यानी नफ्स के गुलाम मत बन जाओ। अगर नफ्स कह रही है इतने बुरा काम करना है, लेकिन उसे मना कर दो। यानी जो तुम्हारा मन कहता है ये करना है, उसे तर्क कर दो। नफ्स यानी जो बुरे कामों की तरफ लेके जाती है। किसी को देख लिया ऐसा, उसके लिए गलत सब दिल में आने लगे कि चोरी हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर के काम ये नफ्स सिखाती है। नफ्स को तर्क करना, ये भी अल्लाह के करीब अच्छे लोग होते हैं जो नफ्स को तर्क कर दिया करते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा दया करने वाला है, दयालुता करने वाला है। अगर मैंने आपको बताया था कि जिसने भी अल्लाह के सिवा किसी और को पूछा, यानी कोई भी शख्स हो जो अपने बाप के सामने अपने बाप को तो बाप ना कहे और अपने आप मिट्टी का एक पुतला बना रखो, उसको बाप कहे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, तो बाप भी ऐसे लोगों को ठोकर मार देगा कि मेरा बेटा, मैं हूँ, इस पत्थर से मांग रहा है, इस पत्थर को बाप बोल रहा है, बाप भी नकार देगा। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, ईश्वर कितना बड़ा दयालु है, जो फिर भी हम लोगों को खिला रहा है, फिर भी हम लोगों को पिला रहा है, क्योंकि हम उसकी बुराइयां करते हैं, हम उसकी नाफरमानियां करते हैं, हम उसके कहने को टालते हैं, फिर भी वो